Hello bachcho, welcome to my channel. In today's class, we are going to learn about application of trigonometric ratios. मैं अपने पिछले वीडियोस में trigonometric ratios के बारे में बहुत elaborately discuss की and we have complete knowledge on this trigonometric ratios. Today we are going to see that how we can apply the knowledge of trigonometric ratios for solving different problems. Especially, we shall apply this knowledge for determination of heights and distance. Okay. तो पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के कंसेप्ट को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. हमें पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर फाउंड ओनली बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल. सपोज ABC here is the right angle triangle. Angle ABC is 90 degree. Angle ACB is one of the two acute angles. And we have basically the trigonometric ratios like sine theta, which will be measured by perpendicular by hypotenuse. That is in this figure, this is AB by AC. Another trigonometric ratio is cos theta, which is base by hypotenuse, that is BC by AC. And another one is tan theta, which is perpendicular by base, that is AB by BC in this figure. And also we know about cosec theta, which is nothing but reciprocal of sine theta, that is AC by AB. Then by sec theta we get AC by BC, that is reciprocal of cos theta. And also we know about cot theta, which is reciprocal of tan theta, that is BC by AB. Okay. All these concepts are clear to all of us. अब हमें एक और चीज के बारे में जानना पड़ेगा. Those are first of all angle of elevation. कौन से एंगल को हम angle of elevation बोलेंगे? Suppose this is your eye. Okay, your eye is at this position, at this point, and you are looking up. आप ऊपर देख रहे हो, तो आपका जो विजन है ना, इसका डायरेक्शन ये होगा, राइट? अब अगर थ्रू योर आई वी कैन इमेजिन अ लाइन विच इज पैरेलल टू द बेस, हॉरिजॉन्टल बेस, then obviously these two lines will make an angle, okay, along this direction. Suppose this is the theta, this angle is theta. This particular angle which is formed by this kind of vision is known as the angle of elevation. Okay. On the other hand, another angle is angle of depression. क्योंकि ये सब कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर रखना पड़ेगा in order to solve different problems of height and distance by applying trigonometric ratios. That is angle of depression. Suppose आपकी आँख, आप यहाँ पे हो, आपकी आँख इस पॉइंट में है. ओके. आप इस पोजीशन में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसको आप देख रहे हो, सो ऑब्वियसली आपकी विजन इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो अब इस डायरेक्शन ऑफ विजन, and if we consider another horizontal line which is parallel to the base, then this two line will obviously form an angle in this direction, right? This particular angle is the angle of depression. आपको इस कंसेप्ट बहुत क्लियर रखना पड़ेगा in order to solve different problems on this topic. ओके. तो अब चलो, इस कंसेप्ट तो हमें मिल गए. अब चलो देखते हैं कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करके सॉल्व कर पाते हैं. ओके, चलिए पहले हम पहले वाला प्रॉब्लम को देखते हैं. If the angle of elevation of the top of the coconut tree from a point on the ground is 60 degree and the point is 20 meter away from the foot of the tree, then find the height of the tree. देखो बच्चों, ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं ना, पोर्शन कर रहे हैं हाइट और डिस्टेंस डिटर्मिनेशन के लिए, इसमें आप देखोगे कि इसका बहुत इलाबोरेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. ये जो कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमें मिला ना, इसका बहुत इलाबोरेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. हम ऐसे ऐसे चीज़ों की हाइट और ऐसे ऐसे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं जो हम प्रैक्टिकली बाय मेजरिंग, बाय यूजिंग द डिवाइसेस कैन नॉट डू, हम कर नहीं पाते. बस कैलकुलेशन के ज़रिए और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की नॉलेज के ज़रिए हम वो कर पाएंगे. जो हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाते या फिर बहुत मुश्किल होती है हमें करने में,
वो सब हम बहुत इजीली, बहुत आसानी से, जस्ट बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वी कैन डू दिस बाय अप्लाइंग सम कैलकुलेशन प्रोसीड्यूर्स. ओके, तो यहाँ पे भी देखो बोला गया है कि एक कोकोनट ट्री की हाइट हमें निकालना है. ओके, एक कोकोनट ट्री हमने यहाँ पे ले लिया. सपोज दिस इज आवर कोकोनट ट्री जिसकी हाइट हमें निकालनी है. सपोज हम फिगर में इसको ए बी नहीं, चलो एक्स वाई नाम देते हैं. ठीक है, आप किसी भी नाम दे सकते हो. मैंने एक्स वाई नाम दे दी. तो ये एक्स वाई हमारा कोकोनट ट्री है जिसकी हाइट हमें निकालनी है. वैसे प्रैक्टिकली तो एक ट्री की हाइट निकालना काफ़ी मुश्किल होती है, राइट, बाय यूजिंग द मेजरिंग डिवाइस. सो बाय एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री from a point on the ground is 60 degree. और यहाँ पे A उस पॉइंट को लिया गया है. सपोज A की जगह में वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है. A से जब टॉप के ऊपर हम देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बेस. यहाँ पे YA is the horizontal base. Moreover, it is told in the question that this point is that 20 meter away from the foot of the tree. So this distance is 20 meter. ये भी दिया हुआ है. तो हमें निकालना पड़ेगा ये हाइट. दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल जिस पॉइंट से हम टॉप ऑफ द ट्री को देख रहे हैं, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन प्रोड्यूस हो रहा है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट और फुट ऑफ द ट्री का जो डिस्टेंस वो दिया हुआ है विच इज 20 मीटर. मोर ओवर ये एंगल ऑफ एलिवेशन जिसकी कंसेप्ट हमें पहले ही मिल चुका है इज गिवन बाय 60 डिग्री. सो दिस इज द फीचर. एक रफ स्ट्रक्चर हमने कर लिया पूरी प्रॉब्लम की, राइट. यहाँ पे एक्स वाई पेड़ है. एक्स वाई हमारा पेड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोकोनट ट्री को. एंगल एक्स ए वाई इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट, जो ऊपर में एग्जिस्ट किया हुआ जो चीज है दैट इज टॉप ऑफ द ट्री को देखने से प्रोड्यूस हुआ है. और वाई ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट जहां से हम वो ट्री की जो टॉप पोर्शन है उसको देख रहे हैं, राइट. सो ये वाला चीज हमें दिया हुआ है. ये ऑल दिस थिंग्स आर गिवन टू अस. अब देखो बेटा, अगर हम फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ले रहे हैं कि ये वाला एंगल है 90 डिग्री, एंगल एक्स वाई ए इज 90 डिग्री, राइट एंगल, दैट इज पेड़ को हम पूरा वर्टिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा पकड़ रहे हैं, राइट. दिस वन इज 20 मीटर. दैट मीन्स ये अगर राइट एंगल है तो एक्स वाई ए को हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की तौर से देख सकते हैं. So YA is the base of the right angle triangle, of this right angle triangle XYA, and this one is one of the two acute angles, that is angle XAY is one of the two acute angles. So हमें ये एंगल पता है, हमें ये बेस पता है. अगर हम इस XYA को एक राइट एंगल ट्रायंगल की तौर से देखें, हमें निकालना पड़ेगा ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस. दैट इज अभी हमें चूज करना पड़ेगा कि among sin theta, cos theta, tan theta, which one will be used. Okay, this is the main learning of this portion. Which one will be used according to the given information or according to the thing what we have to find out. We have to find out the distance, that is the length of the perpendicular of this figure, that is length of the tree, height of the tree, and given information is about the base and this acute angle. So कौन से रेशियो परपेंडिकुलर और बेस को accumulate कर रहा है? Yes, tan theta, right? So we have to take tangent of this acute angle so that we can write it as perpendicular by base, क्योंकि perpendicular हमें निकालनी है, base हमारे पास दिया हुआ है. Therefore we can apply this knowledge in order to get the measurement of this height of the tree. Okay, so here we get tan 60 degree, क्योंकि हमें tangent ही लेना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन थी बेस के बारे में, निकालना है परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर और बेस एक्युमुलेट हो रहा है in this trigonometric ratio, that is tangent. So we have to take tangent of 60 degree and hence we can write xy by ya. Tangent of 60 degree means √3. xy तो हमें निकालना पड़ेगा, ya हमारे पास है 20. Therefore xy is equals to 20 √3. Therefore height of the tree is 20 √3. अभी यूनिट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? मीटर. सो
meter. So this is the way of applying the knowledge of trigonometric ratio for determination of height, or in some other cases you will find out for determination of distance. चलो बच्चों, अभी हम सेकेंड प्रॉब्लम को देखेंगे. यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ ए 5-story बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके बारे में तो हमें पता ही है, angle of elevation of the top of a monument and that of angle of depression of the foot of the monument are 60 degree and 30 degree respectively. उस बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, that is 16 meter, and by calculation we have to find out the height of the monument and also the distance of the building from the monument. देखो, मैं बोल रही थी ना कि बहुत वाइड एप्लीकेशन है इस नॉलेज का. हमें मोनूमेंट के भी हाइट पता चल जाएगा अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें पता हो तो यहाँ पे तो दिया ही हुआ है, तो हम उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हाइट ऑफ द मोनूमेंट निकालेंगे और उसके साथ यहाँ पे डिस्टेंस भी निकालेंगे ऑफ द मोनूमेंट फ्रॉम दैट बिल्डिंग. तो पहले स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके हम इसको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो. फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द रूफ ऑफ अ 5-story बिल्डिंग, और बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 16 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मोनूमेंट एंड दैट ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द मोनूमेंट दिया हुआ है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली. तो फिर अगर हम इसको हमारा वो बिल्डिंग के तौर पे ले ए बी को, देन ए बीज हाइट इज 16 मीटर. दिस इज आवर मोनूमेंट. Okay, this CD is considered in my figure as the monument. और दिया हुआ है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कंसेप्ट तो हमें पहले से ही मालूम है, दिस इज 60 डिग्री. ओके, गॉट इट? क्योंकि हम ऊपर देख रहे हैं, मोनूमेंट की टॉप को देख रहे हैं फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग. सो ऑब्वियसली आवर विजन and the line segment which is horizontal to the base will make this angle of elevation which is 60 degree by given condition. और इसी पॉइंट से हम देख रहे हैं फुट ऑफ द मोनूमेंट को, और ये वाला जो एंगल तैयार हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको हम बोलेंगे, इसकी कंसेप्ट भी हमें है, दैट इज 30 डिग्री, क्योंकि वी आर लुकिंग टू द bottom, to the foot of the monument. So obviously our vision will go along this path, and this direction of vision and this horizontal line will make this angle of depression. अब देखो बच्चों, ये वाला जो एंगल, ये वाला जो लाइन है ना, जो पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, सॉरी पैरेलल टू द बेस है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट और ये वाला जो बेस है, दिस आर पैरेलल, राइट? ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाला जो बेस है, दिस आर पैरेलल. Okay, and this one is an angle, so obviously this one will be equal to this one because these lines are parallel. This is the transversal, so obviously these two angles will form vertically opposite angles, so they are equal. Why they are equal? Because these lines are parallel. I repeat the concept again. देखो बच्चों, ये वाला जो लाइन है, जो horizontal line हमने consider की parallel to the base, वो लाइन बेस के साथ पैरेलल है, और ये वाला जो लाइन है ए डी, वो एक ट्रांसवर्सल की तौर काम कर रहा है, काम कर रहा है. तो ऑब्वियसली दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड एज दिस लाइन्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दिस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स विल ऑब्वियसली बी इक्वल. पैरेलल अगर नहीं होता तो इक्वल नहीं होता, लेकिन पैरेलल है, so इसलिए these two angles will be equal to each other. These are vertically opposite angles. So obviously we can take this one also as 30 degree. So अगर ये वाला angle, suppose I am naming it as x, XAD, अगर हमें जो angle of depression के बारे में बोला गया है वो वाला angle है, so according to this geometrical configuration we get that ADB is vertically opposite to this, and as these two lines are parallel, so obviously ADB will also be of 30 degree in measurement, right? अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा? अभी हमें निकालना पड़ेगा by using all this information the height and the distance. So चलो कैसे निकालते हैं देखते हैं. देखो बेटा, अगर AX is parallel to BD, so by configuration
or construction, AX is parallel to BD. So angle XAD, और यहाँ पे हम ये भी बोल लेंगे कि AD is the transversal, AD is the transversal. Therefore angle XAD, which is the angle of depression, is equals to angle ADB, and both will be 30 degree. Here angle CAX is 60 degree, which is the angle of elevation. Here means in this figure. And AB, that is the height of the building, this is 16 meter. Here we get, देखो बेटा, ये parallel है, okay, and this one, these two lines are also parallel because both of them are perpendicular to the ground. So obviously they are parallel to each other. So this is forming a parallelogram, right? Or better to say rectangle, which is a special case of parallelogram. So obviously length of AB is equals to length of XD. So here AB means height of the building is equals to XD, which is also equals to 16 meter. So हमें क्या क्या information मिला? First of all, XD की length हमें पता चल गया है. This angle is 60 degree and this one is also this one is 30 degree because this is vertically opposite to the angle of depression, which is by given information 30 degree in measurement. अब हम देखेंगे कि इस informations को use करके और trigonometric ratios की knowledge इस्तेमाल करके हम कैसे height of the monument and this distance means BD निकल पाएंगे. तो देखो, पहले हम ACX, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि दिस वन इज राइट एंगल, दिस इज पैरेलल, दिस टू लाइंस आर पैरेलल, सो ऑब्वियसली दिस वन विल आल्सो बी राइट एंगल, राइट? सो फ्रॉम right angle triangle, triangle AXC in figure, we get, क्या पाते हैं हम? देखो बेटा, हमें इस हाइट को निकालना है. दो इट्स नॉट द कंप्लीट हाइट ऑफ द मोनूमेंट, बट एक पार्ट तो है ना, इसको हमें जानना है. और हम देखते हैं कि ये वाला मेजरमेंट दिया हुआ है हमें, राइट? और बेस को भी हमें निकालना पड़ेगा. मोर ओवर द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बेस एंड दिस बेस, not the measurement, but these two bases are given because this base is equal to this base because this is forming a rectangle. So these two lines are not only parallel, they are equal in measurement. तो हम इसको कंसिडर करेंगे, इस वर्टिकल पोर्शन को कंसिडर करेंगे, राइट? सो कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बोथ को कंसिडर कर रहा है? यस, टेंजेंट. सो हम लेंगे टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री of this right angle. 60 degree is one of the two acute angles. So this will give us CX by AX. Okay. Now tan 60 degree की measurement कितना होता है? √3. √3 equals to CX by AX. तो फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, CX equals to √3 AX. इसको हम इक्वेशन 1 के तौर में रखेंगे. ठीक है. तो फिर इस सम के पहले पार्ट में हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल CXA को कंसिडर की, जहाँ पे हमने 60 डिग्री की टेंजेंट लिया और फिर हम CX और AX के बीच एक रिलेशन जो इक्वेशन 1 के तौर में लिखा गया है हमें मिल गया. अभी हम ABD ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे. सो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, triangle ABD, we get, देखो बेटा, information that is not in terms of the measurement, but as we know these two are equal, therefore we can consider this base and also information about this vertical line.
these two informations are given to us. So which ratio combines these two? Yes, tangent. So इस 30 degree की भी हम tangent ले लेंगे. 30 degree is one of the two acute angles of this right angle triangle ABD. So tan 30 degree will give us again perpendicular by base, that is AB by BD, that is 16 by BD. Okay, now we get tan 30 means 1 upon root 3 equals to 16 by BD. Therefore BD equals to 16 root 3. अब देखो बेटा, ये जो BD है ना, BD के साथ AX तो समान है ना, तो BD और AX, this two will give you the same value, that is 16 root 3. Therefore हमें मिल गया BD की वैल्यू, जो एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन का एक पार्ट भी है, डिस्टेंस ऑफ द मोनूमेंट फ्रॉम द हाउस, वो वाला हमें मिल गया. और फिर जो मैंने बोली अभी अभी कि BD और AX, दिस टू सेगमेंट्स आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट. देयरफॉर CX equals to, we can say, root 3 into BD from 1. क्यों? As in figure, AX is equals to BD. Therefore, CX का लेंथ कितना हुआ? root 3 into 16 root 3, that is 48. तो हमें क्या, कौन से मेजरमेंट्स मिल गई? दिस मेजरमेंट्स इज फाउंड, इसकी मेजरमेंट मिल गई हमें, दैट इज 48 यूनिट इज मीटर. द मेजरमेंट ऑफ दिस BD इज फाउंड, विच इज वन ऑफ द टू क्वेश्चंस, दैट इज 16 root 3 मीटर. नाउ ये वाला लेंथ भी हमें पता है, क्योंकि XD is equals to AB, we have already mentioned it in our given condition, okay, which is also 16 meter. So what will be the total length of the monument? CX plus XD, right? So total length or total height, बस height लिखने से भी होगा, of the monument is 48 plus 16 meter, 64 meter. Okay, right? So length, that is height of the monument, is found, and also the distance of the foot of the monument from the building is also found. Therefore height of the monument is 64 meter, and the distance of the building from the monument is 16 root 3 meter. अब देखो स्टूडेंट्स, तो फिर हमने कैसे ये सम को और इस तरह की सम्स को सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय गिवन इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग ईच एंड एवरी स्टेप, वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर. ओके, इस स्ट्रक्चर में आपको बहुत क्लियरली अपने आप को समझाना पड़ेगा कि कौन सी पार्ट को आप क्या ले रहे हो. जैसे हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में AB को बिल्डिंग की हाइट, CD को मोनूमेंट की हाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ले लिया. ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, उसको आपको बहुत अच्छे से क्लियरली अपनी फिगर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. देन सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? आप किस ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हो, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल को आप कंसिडर कर रहे हो, वो आपको देखना पड़ेगा. और ये वाला चॉइस आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा कि ताकि जो ट्रायंगल, उसी ट्रायंगल को चूज करना पड़ेगा जो ट्रायंगल आपको प्रॉपर आंसर की तरफ, प्रॉपर रिक्वायरमेंट की तरफ ले जाए. ओके, और फिर थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको इस्तेमाल करनी है. और ये चीज़ पूरी के पूरे डिपेंडेंट है किसके ऊपर? कौन सी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके ऊपर, और कौन सी पार्ट आपको निकालना पड़ेगा उसके ऊपर. इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को सिलेक्ट करना है. सो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को लेके डिस्कस करेंगे ऑन दिस पोर्शन, height and distance, that is application of trigonometric ratios. Take care students. Bye.